A very fresh morning to all students. Students, in this video, I will discuss our chapter number 19. The title of this chapter is Active and Passive Voice. Students, this chapter is very important. So, you have to give proper concentration in this chapter. The title of this chapter is Active and Passive Voice. Now, look at here. Read these sentences. Ravi kicked the ball. Second sentence, the ball was kicked by Ravi. So, here slight change is there. You can see here students that every sentence structure is, first of all we have to write subject, then we have to write a verb, then we have to write object. Here in the second sentence you can see slight difference. Here in the first sentence Ravi is subject, kicked is a verb and the ball is object. In second sentence you can see that subject and object place change. In the first sentence subject is at the first position and object at the third position. But in the second sentence the object came first, then after verb, before verb here put was, and then kicked and by Ravi. So here subjects go last and object came first. Now look at here. Usually in a sentence the subject does the action indicated by the verb. In the first sentence Ravi is the subject, kick is the action he performs and the ball is the object. Since it receives the action of being kicked. Okay, now look at here students. Sometimes the same sentence can be written differently so that the subject is no longer the one performing the action. Here as I told that in the first sentence subject is on the first position, but in the second sentence the subjects go last at the place of object and object came at the place of subject. Look at here. Sometimes the same sentence can be written differently so that the subject is no longer the one performing the action. In the second sentence, the ball is the subject. However, it is not the doer of the action. It is still the one receiving the action of being kicked. But because the order of the words has changed, the form of the verb has changed and the ball has become the subjects of the sentence. Here in the first sentence Ravi is subject, but in the second sentence the ball became the subject and Ravi became the object. So this is called active and passive voice. So we will see in detail what we have to do. When the subject of the sentence is the doer of the action, the verb is said to be in the active voice. The police officer caught the thief. My grandmother wrote a book. When the subject of the sentence is the receiver of the action, the verb is said to be in the passive voice. So, students, it's a very important line. When the subject of the sentence is the receiver of the action, whatever the action going on in a particular sentence in which the subject of the sentence is the receiver of the action, the verb is said to be in the passive voice. For example, here the thief was caught by the police officer. A book was written by my grandmother. We can change a sentence into the passive voice only if the sentence has a transitive verb. That is a verb that takes an object after it. The object of the verb becomes its subject while changing sentence from the active to the passive voice. जब स्टूडेंट्स हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब जो ऑब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है एंड सब्जेक्ट होता है वो लास्ट पोजीशन पे आता है और बिफोर सब्जेक्ट वी हैव टू कंपल्सरी पुट द वर्ड by. You can see here, okay, in both the sentences before subject by is written. ठीक है, and object came first. Here a book, the thief, both are object, and which is subject? Police officer, grandmother. Both these subjects came last at the place of object. Now look at here students. If the subject of the sentence in the active voice is a pronoun, अब
कभी कभी सेंटेंसेस में प्रोनाउन भी आते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आई, वी, यू, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउन आते हैं तो उसका भी हमें पैसिव वॉइस में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज करना पड़ता है? इट चेंजेस इनटू फॉर्म इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन एज शोन इन द टेबल बिलो। The reverse is also true. That is the pronoun in an object position also changes its form. जैसे कि स्टूडेंट्स कोई भी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में ऐसे प्रोनाउन दिए होते हैं, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट पोजीशन प्रोनाउन, तो उनको हमें पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज करना पड़ता है। जैसे कि आई लिखा हो तो उसका मी हो जाता है, वी लिखा हो तो उसका अस हो जाता है, यू लिखा है तो यू का यू ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, सी लिखा होता है तो उसका हर हो जाता है, धे लिखा होता है तो धैम हो जाता है, और इट का इटी रहता है। तो ये टेबल स्टूडेंट्स आप लोगों को लर्न बाय हार्ट कर लेना है, तो ही आपको समझ में आएगा कि एक्टिव में से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सरसाइज ए में लिखा है अंडरलाइन द डूअर्स ऑफ द एक्शन एंड सर्कल द रिसीवर ऑफ द एक्शन इन दिस सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, ठीक है, मीन्स जो एक्शन कौन करता है, एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, उसके ऊपर हमें सर्कल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है द बॉय कॉच अ फिश, तो यहाँ पे डूअर्स ऑफ द एक्शन कौन है, बॉय, इसलिए यहाँ पे हमें अंडरलाइन बॉय के ऊपर यहाँ लिखा है एग्जाम्पल में, एंड हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, फिश, सो यहाँ पे फिश के ऊपर सर्कल किया है, ठीक है। नाउ लुक एट हियर सेंटेंस नंबर 2, द पुडिंग वाज मेड बाय जेसिका। तो यहाँ पे पुडिंग कौन बनाता है, जेसिका, तो जेसिका को हम क्या बोलते हैं, डूअर्स ऑफ द एक्शन, तो इसलिए यहाँ जेसिका के नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। एंड हु इज द रिसीवर्स ऑफ द एक्शन, पुडिंग, तो पुडिंग के ऊपर हमें सर्कल करना है। सेम वे नंबर 3, कैप्टन शर्मा स्टील द बॉट, ठीक है। यहाँ पे एक्शन कौन करता है वो हमें ध्यान में रखना है, जो भी पर्सन एक्शन को डूअर्स मीन्स एक्शन करता है, एक्शन स्टार्ट करता है, उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। तो यहाँ पे कैप्टन शर्मा इज अ डूअर्स ऑफ द एक्शन एंड हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, बॉट, so here we have to circle bot and we have to underline Captain Sharma. Number 4, the plane was flown by the pilot. यहाँ पे प्लेन तो चलाता है बट कौन चलाता है, पायलट, तो पायलट को हम क्या कहेंगे, डूअर्स ऑफ द एक्शन, so we have to underline the word pilot and who is the receivers of the action, plane, किसको चलाता है, प्लेन को, that's why we have to circle plane. Number 5, you must attend the program. Here you is the doer of the action, that's why we have to underline you, and who is the receiver of the action, program, so we have to circle the word program. Number 6, the man delivered the pizza. Okay, so here अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा आफ्टर 5 सेंटेंसेस कि हमें ये एक्सरसाइज में क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो हु इज हियर द डूअर्स ऑफ द एक्शन, एक्शन कौन कर रहा है, मैन, द मैन, तो यहाँ पे द मैन के ऊपर हमें अंडरलाइन करना है। एंड हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, पिज्ज़ा, तो यहाँ पे हमें पिज्ज़ा के ऊपर हमें सर्कल करना है। नंबर नेक्स्ट 7, द डिसीजन वॉज मेड बाय माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे एक्शन कौन करता है, डिसीजन लेने की, माई पेरेंट्स, सो वी हैव टू अंडरलाइन द वर्ड माई पेरेंट्स। एंड हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, decision, so here we have to circle decision. Number 8, that building was designed by Charles, Charles is the name of boy, so यहाँ पे एक्शन कौन करता है, बिल्डिंग डिजाइन करने की, चार्ल्स, so Charles is called doers of the action, so we have to underline the word Charles. And who is the receiver of the action, building, so we have to circle building. Number 9, Rehana drank the lemonade, तो यहाँ पे एक्शन कौन करता है, ड्रिंक करने की, ड्रिंक, यहाँ पे ड्रिंक लिखा है, सो दिस सेंटेंस इन द पास्ट फॉर्म, सो हियर डूअर ऑफ द एक्शन इज रेहाना एंड हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, लेमोनेड, सो वी हैव टू सर्कल द वर्ड लेमोनेड। ओके, नंबर 10, द परफॉर्मेंस वाज एंजॉयड बाय एवरीवन, तो यहाँ पे डूअर्स ऑफ द एक्शन कौन है, एवरीवन, सो वी हैव टू सर्कल, वी हैव टू अंडरलाइन द वर्ड एवरीवन एंड हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, परफॉर्मेंस, सो वी हैव टू सर्कल द वर्ड परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज ए में आप लोगों को सिखाया कि कैसे हमें डूअर्स ऑफ द एक्शन ढूंढना है एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन,
ठीक है। तो इसी तरह से हमें एक्सरसाइज ए में करना है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज नंबर बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है, राइट वेदर द सेंटेंसेज आर इन द एक्टिव वॉइस, फॉर ए वी हैव टू राइट, और इफ द सेंटेंसेज आर इन द पैसिव वॉइस वी हैव टू राइट बी। तो जनरली स्टूडेंट्स इस टाइप की एक्सरसाइज दी हुई होती है, तो हमें कैसे ढूंढना है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आता है और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में आता है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में ऑलवेज सब्जेक्ट फर्स्ट होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लास्ट में होता है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट होता है, और सब्जेक्ट्स के आगे कौन सा वर्ड लिखा हुआ होता है, बाय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कोई भी एक्टिव सेंटेंसेस दिया है उसमें सब्जेक्ट्स पहले आता है, उसके बाद आता है वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट जब हम उसको पैसिव करते हैं तब जो ऑब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट आ जाता है, फिर उसके आगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी हैव टू पुट वाज वेयर, और ऐसा कुछ भी अगर पास्ट टेंस का है तो ऐसा कोई भी हमें रखना पड़ता है। उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद हमें कंपल्सरी वर्ड क्या ऐड करना पड़ता है, बाय, और उसके बाद लास्ट में आता है सब्जेक्ट। तो ऐसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी उसको हम पैसिव कंस्ट्रक्शन कहेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट हियर, फर्स्ट सेंटेंस, आई एक्सेप्ट योर एपोलॉजी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हो आई इज अ मेन सब्जेक्ट, तो वो फर्स्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए फॉर एक्टिव वॉइस, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। नंबर 2, दिस फैब्रिक वॉज मेड बाई हैंड। तो यहाँ पे फैब्रिक इज एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और बाई हैंड यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाया है और इसके आगे बाई वर्ड लिखा है। तो ये जो सेंटेंस है वो किसका है, पैसिव वॉइस का, इसलिए यहाँ पे मैंने पी लिखा है, ठीक है। तो आपको भी शॉर्ट में ए और पी लिखना है, बट ध्यान रहे ए मीन्स एक्टिव वॉइस एंड पी मीन्स पैसिव वॉइस। नंबर 3, मैनी बिल्डिंग्स एंड रोड्स हैव बीन डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी बिल्डिंग्स एंड रोड्स दीज आर द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले दिया है और यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या है, बाय द अर्थक्वेक, तो यहाँ सब्जेक्ट्स के आगे बाय भी लिखा है। तो ये सेंटेंस कौन सा कंस्ट्रक्शन में दिया है, पैसिव में, ठीक है। नंबर 4, वी डेकोरेटेड द रूम विद बलून्स एंड टिंसल। ओके, तो यहाँ स्टूडेंट्स वी इज ए मेन सब्जेक्ट, तो वो फर्स्ट पोजीशन पे ही दिया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बलून्स और टिंसल है वो लास्ट में ही दिया है, इसलिए दिस सेंटेंस इज ऑफ एक्टिव वॉइस, इसलिए यहाँ पे हमें लिखना है ए फॉर एक्टिव। ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंसेस। लुक एट हियर स्टूडेंट्स, आई वॉज ऑफर्ड ए राइड टू स्कूल। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आई मेन सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे ही है, इसलिए यहाँ पे आई वॉज ऑफर्ड अ राइड टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। नंबर 6, माई फादर डिज़ाइन होम्स फॉर अ लिविंग। ओके, तो यहाँ पे भी माई फादर, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स माई फादर ही है, इसलिए ये भी एक्टिव वॉइस है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सेंटेंस नंबर 5 में बाय मिस्टेक पी हो गया है, बट आप लोगों को लिखना ए है बिकॉज ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। आई वॉज ऑफर्ड अ राइड टू स्कूल, ठीक है। नंबर 7, द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय प्रिया। यहाँ पे क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट, ओके, और प्रिया इज ए मेन सब्जेक्ट, और प्रिया के आगे यहाँ बाई भी लिखा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लास्ट पोजीशन पे है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए उसको हम पैसिव कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। नंबर 8, एन इंजेक्शन वॉज गिवन बाय द नर्स। तो यहाँ पे ये भी एन इंजेक्शन है वो ऑब्जेक्ट है और मेन सब्जेक्ट कौन सा है, द नर्स, और उसके आगे क्या लिखा है, बाय। तो यहाँ पे भी द नर्स है वो लास्ट पोजीशन पे है और ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए ये भी पैसिव कंस्ट्रक्शन का ही सेंटेंस हुआ। नंबर 9, द गर्ल टोल्ड अस अबाउट हर एडवेंचर। तो यहाँ पे द गर्ल इज ए मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लास्ट में है इसलिए उसको हम एक्टिव बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे ए लिखना है। नंबर 10, हिंदी इज बीइंग टॉट बाय मिसेस पांडे दिस ईयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हिंदी इज एन ऑब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट कौन सा है, मिसेस पांडे, और मिसेस पांडे
यहाँ पे लास्ट पे आता है, लास्ट पोजीशन पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे आता है, और बिफोर सब्जेक्ट विच वर्ड केम बाय। तो ये भी पैसिव कंस्ट्रक्शन का ही सेंटेंस है। नाउ लुक एट अनदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब स्टूडेंट्स देयर आर सर्टेन रूल्स दैट वी मस्ट हैव टू फॉलो व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो हर एक टेंसेस में हर एक की अलग अलग कंस्ट्रक्शन होता है, और यू कैन सी द स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर हमें लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा, तो ही हमें याद रहेगा कि जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दिया है तो उसको हमें पैसिव में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में, तो उसका एक कंपलसरी रूल्स है, वो ये रूल्स हमें फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके सेंटेंस एक्टिव में से पैसिव में चेंज होता है। वी यूज द वर्ब टू बी प्लस द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब while forming the verb in the passive voice. The verb to be denotes the verbs such as is, am, are, was and were. This table shows us how the various tenses change from the active to the passive voice. तो ये स्टूडेंट्स आपको पेज नंबर 91 पे ये टेबल दिया है आपकी बुक में। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों को ये टेबल लर्न बाय हार्ट कर लेना है, ठीक है। बट कैसे करना है, आपको एग्जाम्पल लर्न नहीं करने हैं, आपको सिर्फ रूल्स उसके याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे समझाया है कि डिफरेंट टेंसेस के लिए उसका पैसिव कंस्ट्रक्शन हमें करना होता है, तो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है, ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, टोनी राइट्स अ लेटर, ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो अब हमें कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है उसको हमें पैसिव में चेंज करना है, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें फर्स्ट पोजीशन पे लाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हमें क्या लिख देना पड़ेगा, अ लेटर, क्योंकि ये सेंटेंस में लेटर है वो ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद एम इज आर कंपल्सरी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अ लेटर इज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमें यहाँ पे इज लिखना पड़ेगा। और जो भी वर्ब दिया है तो राइट्स का क्या हो जाता है यहाँ, रिटर्न। तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा, राइट, रॉट, रिटर्न, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस दिया है और उसको हमें पैसिव में चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा कंपलसरी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें एम इज आर ऐड करना पड़ेगा, प्लस हमें क्या लिखना पड़ेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना पड़ेगा, V3, और उसके बाद हमें कंपलसरी कौन सा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, बाय, और उसके बाद प्लस हमें सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट सेंटेंस में दिया है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोनी राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब उसको हमें पैसिव में चेंज करना है, तो कैसे करना है, लेटर इज रिटन बाय टोनी। तो ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। तो ये आपको लर्न बाय हार्ट कर लेना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद एम इज आर लिखना है, तीनों में से कोई भी एक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस V3 एंड प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। तो ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस, अगर सिंपल पास्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस दिया है, जैसे कि यहाँ दिया है माया क्लीन द कपबोर्ड, तो जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते थे एम इज आर लगाते थे, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना पड़ेगा, वॉज वेयर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट है, कपबोर्ड, तो हमें सबसे पहले द कपबोर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद कपबोर्ड्स नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा क्या है, कपबोर्ड, इसलिए हमें यहाँ पे वॉज सिंगुलर फॉर्म लिखना पड़ेगा, वर्ब का बी फॉर्म पास्ट टेंस का, और उसके बाद यहाँ पे V3 ही दिया है इसलिए वही का वही रखेंगे हम, क्लीन, और उसके बाद कंपलसरी ये भूलना नहीं है बाई लगाना, और बाई के बाद ही हमें जो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है माया वही लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे आप देखो, द प्रिंसिपल विल अवॉर्ड प्राइजेस, तो सबसे पहले इसमें भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्राइजेस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें विल ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर। उसके बाद कंपलसरी हमें बी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे वर्ब का जो अवार्ड है उसका V3 हो जाएगा, तो अवार्ड का क्या हो जाएगा, अवॉर्डेड।
उसके बाद हमें कंपलसरी बाई लगाना पड़ेगा और उसके बाद द मेन सब्जेक्ट यहाँ पे द प्रिंसिपल। ठीक है, तो कैसे होगा, प्राइजेज विल बी अवॉर्डेड बाय द प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो रीमा हैज़ ईटन द केक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, द केक। फिर हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स हमें लिखना है। यहाँ केक्स नहीं लिखा है बट लिखा क्या है, केक, इसलिए हम यहाँ ऐड करेंगे हैज़। और हैज़ के बाद कंपलसरी हम कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो उसको हम पेसी में चेंज करते हैं तो बीइंग लगाना कंपलसरी है। दिस इज़ द रूल। तो रूल को हमें कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है। ओके, बीइंग और उसके बाद ईटन का, तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो वर्ब का 3 फॉर्म ही होता है, वर्ब विथ 3 फॉर्म, तो वही का वही लिख देना है, ईटन का ईटन और उसके बाद कंपलसरी बाई एंड राइमा इज द मेन सब्जेक्ट। अब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया है तो क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जय हैड डिलीवर्ड द मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट फर्स्ट रखना है द मैसेज, उसके बाद हमें हेड का हेड ही रखना है क्योंकि उसमें हेड ही आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद हमें कंपलसरी बीइंग का यूज़ करना पड़ता है और यहाँ पे V3 ही दिया होता है इसलिए वही का वही डिलीवर्ड लिखना है, उसके बाद कंपलसरी बाय लिखना है और उसके बाद मेन सब्जेक्ट जय। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आपको पता है सब्जेक्ट के बाद एम ईज़ आता है और वर्ब को ING लगता है। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है द कैट इज़ चेजिंग अ माउस, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ ये सेंटेंस में, अ माउस, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अ माउस लिखना है। माउस इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे हमें ईज लगाया है और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस हो उसको हमें पैसिव में चेंज करना है तो कंपलसरी बीइंग लगाना पड़ता है, ये अकॉर्डिंग टू रूल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बीइंग लगाया है और यहाँ पे वर्ब विथ ING जो होता है उसको हमें V3 में चेंज करना है, यानी चेजिंग का क्या हो जाएगा, चेज्ड, उसके बाद कंपलसरी बाय और उसके बाद द मेन सब्जेक्ट द कैट। ओके, नाउ लास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हमें क्या करना है, द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग क्रिकेट, तो सेम वे जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का किया उसी तरह से, बट सिर्फ फ़र्क कितना है, यहाँ पे हमने एम इज़ार लगाया था बट ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हमें यहाँ पे वॉज वेर लगाना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्रिकेट इज़ अ ऑब्जेक्ट, उसके बाद वॉज बिकॉज इट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद कंपलसरी हमें यहाँ पे बीइंग लगाना पड़ेगा और यहाँ प्लेइंग का क्या हो जाएगा, V3 फॉर्म प्लेड, उसके बाद कंपलसरी बाय और उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बाय द चिल्ड्रन। तो ये स्टूडेंट्स ये टेबल बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टेबल का जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने समझाया डिटेल में वो आपको लर्न बाय हार्ट कर लेना है। अब हम देखते हैं आगे। इन द पैसिव वॉइस वी यूज़ द वर्ड बाय आफ्टर द वर्ब। ठीक है, वर्ब के बाद हम कंपलसरी क्या लिखते हैं, बाय। द पियानो वॉज प्लेड बाय, यहाँ पे वर्ब प्लेड है उसके बाद यहाँ बाय लिखा है, बाय सुनिधि। द डोर वॉज ओपन बाय अली। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब के बाद यहाँ वर्ब है ओपन और उसके बाद भी बाय लगा है। समटाइम्स इवन द वर्ड बाय इज मिसिंग द वर्ब कैन स्टिल बी इन द पैसिव। कई बार ऐसा बाय वर्ड हम नहीं लगाते हैं तो भी वो वर्ब को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। कैसे, ए लाउड नॉइस वॉज हर्ड। ठीक है, द बेड वॉज मेड। ठीक है, तो यहाँ पे बाय नहीं लगाया है। ठीक है ना, लुक इट हियर, एक्सरसाइज नंबर C, टिक द करेक्ट वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है और दोनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टिक करना है, बट यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है सो दैट यू कैन क्लियरली रीड द सेंटेंस। द वेंडर पुश्ड और वॉज पुश्ड बाय द एंग्री मैन। तो यहाँ पे हमें पैसिव का जो करेक्ट फॉर्म है उसके ऊपर अंडरलाइन करनी है, इसलिए पुश्ड के आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, वॉज पुश्ड। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज वॉज पुश्ड।
फिर नेक्स्ट है द फिल्म वॉज मेड बाई ए डेडिकेटेड टीम। तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के अभी मैंने टेबल में समझाया कि वर्ब के आगे कंपलसरी हमें बी फॉर्म रखना पड़ता है, चाहे वो सेंटेंस पास्ट टेंस का हो, प्रेजेंट टेंस का हो या पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसलिए यहाँ पे करेक्ट फॉर्म कौन सा है, वॉज मेड। नंबर 3 दे इलेक्टेड के वॉज इलेक्टेड हिम एज ए काउंसलर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है दे इलेक्टेड ओके हिम एज ए काउंसलर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में दिया है इसलिए यहाँ पे इलेक्टेड आया। नंबर 4 द फायर फाइटर्स पुट आउट के वॉज पुट आउट द फायर इन द शॉर्ट वाइल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे है इसलिए यहाँ पे हमें डायरेक्ट एक्टिव वॉइस अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू अंडरलाइन पुट आउट। नंबर 4 अ न्यू मेडिसिन फॉर मम्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो अ न्यू मेडिसिन इज एन ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे हमें पेसिव में यहाँ पे हैज़ बीन डिस्कवर्ड इज ए करेक्ट आंसर। नंबर 6 ऑल रोड्स टू द सिटी विल रिमेन क्लोज के विल बी रिमेन क्लोज्ड। ठीक है, ऑल रोड्स टू द सिटी will remain closed के will be remain closed for the next 4 hours। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, will remain closed। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस का है इसलिए यहाँ पे हमें will remain closed यानी वर्ब के साथ हमें shall will लगाना पड़ता है और उसके बाद हमें V3 लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे will be remain नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का नहीं है, उसका यहाँ पे हमने लगाया है हैज़ बीन लिखा है इसलिए ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है इसलिए हैज़ बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, सो सॉरी विल रिमेन क्लोज्ड। ठीक है, नंबर 7 मेनी सैपलिंग्स वेर प्लांटेड कि प्लांटेड बाय द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख रहे हो जब भी आप सेंटेंस पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि मेनी सैपलिंग्स इज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आया है। ठीक है, और चिल्ड्रन प्लांटेड बाय द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट चिल्ड्रन है बट सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है मैनी सैपलिंग्स और यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे मेन सब्जेक्ट लिखा है द चिल्ड्रन, इसलिए ये सेंटेंस है वो पास्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन में है। इसलिए पैसिव में अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें यहाँ पे करेक्ट कौन सा लगता है, वेयर प्लांटेड, क्योंकि प्लांटेड तो हम एक्टिव वॉइस में करते हैं बट ये सेंटेंस पैसिव कंस्ट्रक्शन का दिया है इसलिए यहाँ हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा वेयर प्लांटेड। नंबर 8 these rugs have been woven कि है woven by hand। तो ये भी पैसिव कंस्ट्रक्शन का ही सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जगह पे दिखाया है और यहाँ सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे और उसके वर्ब के बाद बाई लगाया है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा रहेगा, हैव बीन वूवन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। ठीक है, अब 9 अ कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड के गोइंग टू hold this week on providing electricity in small villages। तो यहाँ पे a conference is being held आएगा। क्यों आएगा is being held, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और यहाँ पे क्या लिखा है देखो आप, कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड दिस वीक ऑन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉल विलेजेस। तो ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें यहाँ पे इज के साथ हमें यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इज लगाया है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें बीइंग लगाना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट the thieves hasn't been caught के haven't been caught so far। so here the correct answer is haven't been caught। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को ये भी सेंटेंस आपको पता चल गया होगा कि ये जो सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है इसलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा haven't been caught। करेक्ट आंसर, सो द थीव्स haven't been caught। क्यों,
यहाँ थियर्स लिखा है, आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? ये सब्जेक्ट्स है वो प्लूरल फॉर्म में दिखाया है, और हम जब प्लूरल सब्जेक्ट्स होता है तब हम हैव का यूज़ करते हैं, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होता है तब हम हैज़ का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें करेक्ट क्या लग रहा है, हैवंट बीन कॉट। ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स 1 to 10 सेंटेंसेज में आपको अच्छे से पढ़ना है और उसमें आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। आई होप स्टूडेंट्स वॉट एवर आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो यू ऑल हैव understood properly, and you have to both the table whatever I have discussed in this video, you have to learn by heart the structure and format of given tenses. Thank you. Have a nice day to all of you.